ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਡੁੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ 2 2.5 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੂੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਸਿਆ ਨਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੇਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂ। देखो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ख्वाह वो जावेद गांधी है, ख्वाह वो कोई भी साढ़े जितने भी उलमा ने, अच्छा ख्वाह वो डॉक्टर इसरार हन, अच्छा ख्वाह वो मुफ्ती कमरान अकमल साहब ने, सब तो मेरे फेवरेट ख्वाह वो तसीफुर रहमान साहब ने मुफ्ती, उन्होंने सारी गल्लां नाल इतराज नहीं किया जा सकता। जिहड़ी गलत गल इतराज कर दो बस। सही गल। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਮੁਫਤੀ ਕਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਦੀ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਚ। अच्छा ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਰਮ ਫਤਵਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਮੁਫਤੀ ਤਸੀਫ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਖਤ ਵਾਲਾ ਫਤਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤਸੀਫ ਰਹਿਮਾਨ? ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, अच्छा लेकिन वो सख्त बहुत है, बहुत सख्त फतवा है उन्होंने, मतलब सख्ती बहुत करते हैं। ਮਸਲਾ ਕੋ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। मैं थोड़ा जा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਕਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਫਤਵੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੁਫਤੀ ਕਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਔਰ ਹਲਕੇ, ਮਤਲਬ ਨਰਮ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸੀਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਇਧਰ ਆ ਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾਵਤ ਬਰਕਾਤ ਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲਮ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇ। ਆਲੀਆ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਲੀਆ ਉਲੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਲੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਲੀਆ ਨੇ ਉਹੀ ਆਲੀਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਤਵੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕਦਾ ਲਿਮੂ ਸ਼ਿਮੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ। ਆ ਮੁਫਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਮੁਫਤੀ ਹੈ। ਧਨੀਆ ਮਿਰਚਾ ਫਰੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਖੈਰ ਨਾਲ? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਪਲੈਟਰ, ਖਾਣਾ ਜੇ? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੁਫਤੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, आप कैसे नवे हैं? साथी आ गए ना साढ़े नाल। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एमडी साहब की करू जे? भाजी इन्होंने काट लेता है पिस्तौल।
ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਟਾਕੀ ਸ਼ਾਕੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ मोहम्मद साहब नाल गल करो। मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब को आज मैं देख रहा था एक स्ट्रीम पे बात कर रहे थे किसी हवाले के साथ। क्या बात चल रही थी मोहम्मद साहब? कौन से हवाले से? मेरा ख्याल है आप किसी ब्रॉड पे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। कब? आज? हाँ जी। नहीं, आज तो जो है मैंने इतना बात तो नहीं की हवाले पर। नहीं, वो हमारा आज हो सकता है, आपका गुजर जो चुका है वो। एक हवाला है तो जो है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी करें। जी लगा लो हवाला में। जी 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 लगाओ जी, जी मैं लगा लेता हूँ। मलिक साहब मोहम्मद साहब दे हवाले लावण तक मैं तो एक लतीफा ना सुनावा। मैं कहना जी छिक पाट रखोगे। अच्छा, चार बिरावन ते नमाज नन पढ़ दे, मौलवी आख्या भाई आज मैं ना तो नमाज पढ़ावनी है। हाँ हाँ आगे की होया? अपनी ठहरो मैं डिस्क्लेमर चला ला मलिक साहब, एक मिनट। उन्हें मेरा मैं की मोट कर छोड़या। लो जी। तो फिर की होया मलक जी? उन्हें मेरे मैं की म्यूट कर दिता ये। हुन सुनो फिर। हाँ मौलवी ने आख्या मैं ना तो नमाज पढ़ावनी है। मौलवी ने आख्या चलो नमाज पढ़ो ना, आख्या सान कोई नू आंदी। मौलवी आख्या जिवें जिवें मैं ना करना तुसा पीछे उंज करना। हाँ मौलवी अगे खलो रहा वो किसे वो दरख्त दे तले आन ओ उड्डा ना भूण ते ओ मौलवी दे जेड़ा इन्हें गर्दन ते उस जनाब डंग कीता ते मौलवी उस जाते थप मारी। पिछू जेड़े चार फिरा इन्होंने अपनी गर्दना ते थप्पा वैंदियां कीतियां। ਉਹ ਬੋਣ ਕਿਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। साहब उर्दू में बात करो ताकि मुझे भी समझ आए बात। क्या बात कर रहे हो? ਇਹ ਉਰਦੂ ਚ ਖਾਨ ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਲਤੀਫਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਤੀਫਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ। मलक जी एक मिनट पेंडिंग करो, बड़े मजेदार गल है। एक मिनट ये हवाला देख ली। हाँ जी खान साहब, क्या हवाले में क्या है? जी हवाला ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी लिखता है कि अक़वाल यानी बात कर रहा है, लोगों को जवाब दे रहा है मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कि ऐसा ही इस नई शायद के नबूवत के लिए किसी और नबी की ज़रूरत है और हज़ार हाइफ है इन लोगों के ईमान पर जिनके नज़दीक अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत साबित नहीं हुई, बल्कि जबकि मसीह आएगा और गवाही देगा तब साबित होगी। फिर कौला यानी मुसलमानों की बात कर रहा है कि मसीह नबी होकर नहीं आएगा, उम्मती होकर आएगा, मगर नबूवत इसकी शान में मज़र होगी। ये मुसलमानों की का अकीदा पेश करके मुसलमान कह रहा है कि मसीह जब आएगा वो जो है उम्मती होगा, लेकिन उसके साथ नबूवत होगी लेकिन ज़ाहिर नहीं करेगा। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी अक़वाल जवाब दे रहा है कि जबकि शान नबूवत उसके साथ होगी और खुदा के इल्म में वो नबी होगा तो बिलाशुबा इसका दुनिया में आना ख़ात्म नबूवत के मुनाफी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी मुसलमानों को जवाब दे रहा है कि आप लोग कहते हो कि जन ईसा अलैहिस्सलाम आएगा तो वो जो अल्लाह ताला के इल्म में तो वो नबी होगा, तो जो है ये तो ख़त्म नबूवत का इनकार हो जाएगा। मनाफी का मतलब इनकार करना, क्योंकि वो दर हकीकत नबी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है कि क्योंकि वो दर हकीकत नबी है और कुरान की रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का आना मना है। दलील दे रहा है जी, किसी नबी का आना जो है कि कुरान की रूह से मना है। ठीक है। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जो है मुसलमानों की बात पेश कर रहा है। कौला नबी का मिसाल नबी
होता है। ठीक है, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी अक़वाल यानी जवाब दे रहा है कि तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि गैर नबी बरूज़ के तौर पर हम कायम मकाम नबी हो जाता है। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी मुसलमानों को जवाब दे रहा है कि मुसलमानों, गैर नबी जो है वो बरूज़ी तौर पर जो है नबी है, जो कायम मकाम उसका जो है बरूज़ी तौर पर नबी होता है। यानी गैर नबी, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है कि मैं गैर नबी हूँ, और दलील दे रहा है मुसलमानों को कि अगर नबी आएगा तो जो है वो ख़त्म नबूवत का इनकार हो जाएगा, क्योंकि कुरान से साबित है कि नबूवत बंद है। तो मिर्ज़ाइयों से मैं सवाल करता हूँ कि मिर्ज़ाइयों, आप लोग कहते हो कि जो है नबूवत जारी है, यहाँ पर तो दलीलें पेश करें मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी, आप लोग क्या कहते हो उस पर के बारे में? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये मैंने भी पढ़ा था एक जगह ये पे। साढ़े हक च टुर गई है मलक साहब ते हक च। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये मैंने भी एक जगह पे ये पूरी तहरीर पढ़ी थी, इसके पिछले अवराक भी पूरा मजमून मैंने पढ़ा था। तो इस मजमून में जो वो बयान कर रहे हैं वो इस बारे में बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों का एक अकीदा है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम ने आना है, ठीक है, जबकि वो इस अकीदे को रद्द करते हुए कह रहा है कि चूंकि ख़त्म नबूवत हो चुकी है इसलिए अब कोई भी नबी नहीं आएगा जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, ठीक है। इसमें वो अपने आप को तो निकाल रहा है बाहर और साथ में हज़रत ईसा के आने का भी रद्द कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जो कादियानी हजरात हैं उनका जो अकीदा है वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ज़िल्ली बरूज़ी गैर हकीकी नबी है, असली नबी नहीं है। वो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर नबी मानता है, उनके अंदर, यानी कि उनका ज़िल और उनका बरूज और उनका साया। तो ये तो कादियानी भी कहते हैं कि हम खातमुन नबीयीन पे यकीन रखते हैं, यानी कि अब कोई शरीयत वाला नया नबी नहीं आएगा, कोई शरीयत लेकर जो आएगा वो नबी नहीं आएगा। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में रहकर जो उनसा है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नबी है, उनकी शरीयत के अंदर। यहाँ पर देखें ना, देखें एक चीज है जो आपने हवाला पढ़ा ना, इसके अंदर मौजू काफी सारे हैं। एक जो पहले उन्होंने दो जो बहुतान लगाए हैं ना कि मुसलमानों का ये अकीदा है, मुसलमानों के हवाले से मुसलमानों की तरफ जो मंसूब किया है उन्होंने ये बात कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो उम्मती होंगे क्योंकि उनकी नबूवत ख़त्म होगी। मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है। मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी उम्मती हैं, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दे दी और अल्लाह ताला नबूवत देकर किसी से उसकी शान के लायक नहीं है कि वो वापस ले। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाएंगे इस उम्मत में, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में, तो ये वो नबी होंगे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में आने से वो नबी उम्मती होंगे। और फिर जो जिस तरह और फिर दूसरा जो इन्होंने कुरान पाक के हवाले से मिर्ज़ा साहब ने ये बहुतान लगाया है कि जो आप ये कह रहे थे ज़िल और बरूज के हवाले से कि कुरान पाक में से ये साबित है कि जो नबी गैर नबी जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम की के बाद, नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद वो ज़िल्ली और बरूजी तौर पर नबी होगा। ये तो कुरान पाक के अंदर कहीं भी नहीं है, ये बहुतान है, सरासर झूठ है। ये तो मुसलमानों को अकीदा ही नहीं है। मुसलमान तो इस चीज को नहीं मानते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई ज़िल और बरूज है वो किसी किस्म का कोई नबी आ सकता है। ये किसी भी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है। ये अकीदा मिर्जा साहब ने गढ़ा है उस वक्त जब वो 52 साल की उम्र के बाद आएंगे। पहले तो उनका भी यही अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद हैं और वो कुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे। तो ये जो उन्होंने मिर्जा साहब ने जो अपनी नबूवत का या अपने मसीह मऊद होने का जो दावा किया है उन्होंने ऐसे तो नहीं कर दिया, इसी बुनियाद पर, इसी बेस पर किया है कि उनका भी यही ईमान था, उनका भी यही अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। क्योंकि ये मुसलमानों का ही अकीदा था जो कि 1400 साल से चला आ रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने एक नई तौर पर एक नबूवत घड़ ली है, जिसको ज़िल और बरूज का इन्होंने जो भी लिबास पहनाया, जो भी उसके ऊपर पर्दा डाला है। ज़िल और बरूज का क्या कोई किसी और, फिर ज़िल और बरूज को ये लेते हैं जिसकी कोई जाती तौर पर हकीकत ही नहीं है।
जिस शख्स की हकीकत ही ना हो हम उसको नबी मानते ही नहीं है, वो चाहे जो मर्जी के, हम तो कहते हैं उसका दावे नहीं मानते, उसका दावे नहीं है नबूवत का। जिल और बुरूज क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, समझ रहे हैं? तो यही बात हम जब नहीं तो कहते हैं कि मिर्जा साहब का कोई दावत नहीं है। 52 साल तक कुरान पाक भी वो जो आयत पेश करते हैं जिसे इजराए नबूत करते हैं, तो 52 साल तक क्या वो कुरान पाक में पहले मौजूद नहीं थी ये आयत, जो मिर्जा साहब भी मानते थे कि इससे तो कोई इजराए नबूत साबित ही नहीं होती? वो भी खत्म नबूत पे यकीन रखते थे और हज़रत ईसा के आने के भी ऊपर यकीन रखते थे। तो 52 साल मिर्जा साहब को क्या हुआ इस आयत के ऊपर? उधर से इन्होंने जो 52 साल नहीं इजराए नबूत की और बाद में जाके इस आयत से इजराए नबूत निकाल ली, वो भी जिल्ली ब्रूजी और पता नहीं कौन सी किस्म की। नहीं मैं इस एक आया बात मुबारका से या तो नबूवत निकलेगी या तो नबी आएगा। एक मिनट मलिक साहब, इस आया मुबारका से या तो नबी आएगा, ठीक है ना, जिस तरह ये कहते हैं। अगर जिल और बरूज डालेंगे तो उस आया मुबारका से जिल्ली बरूजी नबी अगर निकालते हैं तो जिल्ली बरूजी सिद्दीक भी आएगा, जिल्ली बरूजी शहीद भी आएगा, जिल्ली बरूजी सालेहीन भी आएंगे। अगर कोई और नहीं आ सकता तो जिल्ली बरूजी नबी कैसे आ सकता है? ये जिल और बरूज जो सिर्फ नबी के साथ ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिल और बरूज बाकी जो होते हैं, बाकी जो इनामात हैं, शहीद है, फिर उसके बाद सालेहीन हैं, फिर उसके बाद सिद्दीकीन है, तो उनके साथ ये जिल और बरूज क्यों नहीं है? मेरा भी एक सवाल है। जी जी। और दूसरी बात ये यूसुफ भाई, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल के मुताबिक, और मुझे पता है मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है, ये कहना कि किसी किस्म की नबूवत, ये फिक्रा ही गलत है। नबूवत की कोई किस्में है ही नहीं। अगर आप ये कहेंगे ना कि किसी किस्म का नबी, तो इसका मतलब है कि आप इस बात को मानते हैं कि नबूवत की किस्में होती हैं। नबी बस, और उसमें कोई चीज़ बंदा ऐड नहीं कर सकता। ये बात ये है, मुझे थोड़ा जी पंजाबी साहब। अस्सलाम वालेकुम सब लो भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरा सलाम। राजा साहब आपको भी, यूसुफी साहब मेरा सबको भी मेरा सलाम। यार मैं वालेकुम आपसे मैं ना परसों का मैं यही सोच रहा हूँ कि यार हम मतलब कि ये इसके ऊपर हमें डिबेट करनी ही नहीं चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये अपनी मौत आप मर जाएंगे यार। मैं तो मतलब है कि मैं ये सोच रहा हूँ। कल परसों मुझे एक बंदा डिबेट में आया था, वो मुझे कह रहा था कि भाई हम वहाँ पे ना जाए, उनके साथ डिबेट ही ना करें, तो ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो क्या मतलब है कि अगर ऐसा मतलब ठीक है, अगर उनका मुकाबला मतलब है कि उनके सामने ना जाए, उनकी वहाँ पे बैठे ही ना जाके, वो कहते हैं फेक उनके होते हैं, वो व्यू शू ले रहे होते हैं, तो मतलब कि वो अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इनका नाम लेना ही फजूल है। इनका मतलब है कि कुरान का इन्हें हवाला देना, इनके हवाले निकालना, इनके ये ही कुरान की मतलब कि कुरान के खिलाफ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ है। इनको मतलब कि वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इनको वहाँ पे खड़ा करना, या उनको आयात में से इनका नाम ले लेना। वो कल एक आलम साहब बैठे हुए थे, वो कहते थे इनके साथ डिबेट ही ना करो। नहीं, डिबेट तो करनी चाहिए। हमारा मैसेज तो आम लोगों के लिए भी है ना, कि आम लोगों तक भी हमारा कोई मैसेज पहुंचे। तो डिबेट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। डिबेट तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, अपनी दावत पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, दूसरी एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये ऐसे गलीज हैं कि ये मतलब कि आपने तर्जुमे वाले ये कुरान पाक अभी जो है, ये सादा लोग जितने भी हमारे गांव पिंडों वाले लोग हैं ना, इन बेचारों को पता नहीं है कि तर्जुमा क्या है क्या नहीं कुरान पाक। अभी इन्होंने क्या किया हुआ है कि वो कुरान पाक नया ले लो, और जो आपके शहीद हुए कुरान पाक हैं या कुरान पाक पुराने हैं, साथ ही ऐलान भी कर रहे होते हैं। ये परसों हमारे तकरीबन गाँव के साथ ये गाँव, वहाँ पे उन्होंने एक पकड़ा भी, फिर आलम साहब को दिखाया उन्होंने, जो इमाम मस्जिद थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये वाकई इनका मतलब है कि ये इन मरज़इयों के ही कुरान है, और जिसमें से वो तर्जमे की आयत तब्दील थी, और फिर उनको पकड़ लिया। वो बेचारे सादा लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें किसी ने भेजा है जी, हमें नहीं पता, हम तो मुसलमान हैं। और वो वाकई वो तो मजदूर थे जो मतलब बेच रहे थे। जी मेरे भाई, अभी जो आपने जो बात फरमाई है ना, अब आप पहली जो बात थी उसके इस आपके जुमले में उसका जवाब है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो मिर्ज़ई या कादियानी हैं, अब कुरान पाक का तर्जुमा अपनी मर्ज़ी से बदल करके लोगों को, सादा लोग मुसलमानों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें ताकि वो पढ़ें और उनके ईमान पर डाका डालने की कोशिश करें,
تو جب اس طرح کی براڈس چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ یا مساجد میں یا دیگر کسی جگہ کے اوپر لوگ اس چیز کی اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں، علماء ہمارے جب بات کرتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آ کے کسی سے کوئی فالوورز گین کرنے ہوتے ہیں یا ان کو کوئی اور لالچ ہوتی ہے. کسی بھی مسلمان کو کسی قسم کی لالچ نہیں ہوتی کہ وہ آ کر کے اپنی کو فیمس اپنے آپ کو کرنا یا فیم چاہ رہا ہوتا ہے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، کچھ ایسے سادہ لوگ مسلمان میری طرح کے سادہ لوگ جو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوں گے، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ایسا مطلب مختلف طریقے سے، جیسے کچھ لوگ آج کل فون کا دور ہے، کچھ لوگ فون کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف ایپ کو یوز کرتے ہیں. اگر اس پر آ کر کے مسلمان ہمارے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں سے اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے، تو یہ جو گیجٹس یوز کرتے ہیں تو یہ اس چیز پر بھی ہمیں ہیلپ دیتے ہیں کہ ہم کافی سارے مسلمانوں کا ایمان اس طرح بھی بچا سکتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کو اپنے عقائد کے بارے میں، اگر ان کو عقیدے کے بارے میں پتہ ہوگا اور ان کے سامنے کوئی ایسا لٹریچر جو کہ اسلام سے بالکل خلاف ہوگا، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو جب ان کو پتہ ہوگا تو وہ اس کو رد کر سکیں گے نا. تو ان کو قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کر کے کسی عالم کے پاس بھاگ کے دوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ مجھے بتائیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس کو میں گھر پہ رکھوں، پڑھوں یا نہ پڑھوں. اگر اس کو خود کو علم نہیں ہوگا، اگر اس کو